पहुंच चुके हैं। But it's okay, कोई बात नहीं. In case if you have any kind of doubts or any kind of queries, Good afternoon, I will be here. ladies and gentlemen. My name is Gaurav Today Mahindra. we are In case assembled आपको here अगर नंबर for the चाहिए तो purpose फिर आप of हमारे a वेबसाइट से ले seminar सकते हैं. for the And purpose thank of you very much. Thank you so much. on a subject that how to crack judicial services exams. Today's seminar was organized in the series of the program which we already have done with all members. Now I welcome all the key speakers who come from the Mahindra Law Academy, Delhi. Before starting the program, I request our office bearer to honor our guest with the bouquet of flowers. पहुंच चुके हैं। Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we are assembled here for the purpose of a seminar for the purpose of on a subject that how to crack judicial services exams. Today's seminar was organized in the series of the program which we already have done with all members. Now I welcome all the key speakers who come from the Mahindra Law Academy, Delhi. Before starting the program, I request our office bearer to honor our guest with the bouquet of flowers. Of India, now they have arrived at our city and they are before us at our Bar Association campus to give us a session about how to crack the judicial service exams. I invite Mr. Gaurav Mahindra, Director, Mahindra Law Academy, Delhi, to come on the podium and address the bar. Yes, I believe that I'm audible. आवाज मेरी आ रही है? Yes, very very good afternoon to all of you, my dear aspirants plus respected sir, respected president sir, and office bearer. Thank you so much for having me over here. So once again, I would like to introduce myself that my name is Gaurav Mahindra, and I have founded this academy, Mahindra Law Academy, with my own name, right? So today I will be telling you that what should be the approach, because I believe that many of you are here to clear the exam, or some of you are here to look for your younger people, right? आप शायद अपने नोन के लिए भी देख रहे होंगे. तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ जुडिशरी की या फिर एपीओ की या एडीए की, राइट, दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. So please understand that there will be 3 stages. I believe you all are aware, that is prelims, mains and interview, right? So prelims clear करना, I believe it is not very difficult, right? देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फैक्चुअल और एक होता है कॉन्सेप्चुअल, राइट? You have to have an approach that how to have the factual knowledge. बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझे सेक्शंस याद नहीं होते.
एंड आई बिलीव ये सबका ही कॉमन एक वो है, इशू है कि उनको सेक्शंस याद नहीं होते, या फिर सेक्शन के साथ जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं, शैल है, मे है, उसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, वो कभी कभार स्टूडेंट्स को याद नहीं होते और इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपना OMR शीट फिल करने में, राइट। आई बिलीव शायद आपका भी यही प्रॉब्लम रहती है, एम आई करेक्ट, राइट। सेक्शंस, तो देखो सेक्शंस करने की कोई ट्रिक नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिवाइज। तो पहले मैं इसको ना, मेरा जो ये लेक्चर है या फिर एक डिलीवरी है, इसको मैं कई सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग अपॉन प्रीलिम्स, ओके। अब देखो प्रीलिम्स में कल ही मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ कि सेक्शंस को कैसे याद करें, राइट। तो आई हैव टोल्ड देम कि देखो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 सेक्शन एक साथ करने हैं, रादर मेक अ ग्रुप एंड रीड 10 सेक्शंस, मिनिमम 10 सेक्शंस। एंड आई बिलीव रीडिंग 10 सेक्शंस, लर्निंग 10 सेक्शंस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट अ हरक्यूलिन टास्क। 10 सेक्शन तो कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता है, सेक्शंस के वर्ड्स भी याद होने चाहिए, राइट, ओके। और फिर अपने एक और फ्रेंड से बात करो कि वो भी 10 सेक्शन याद करेगा, 5 आप उसको बताओ, 5 वो आपको बताएगा, जहां पर भी कोई गलत होगा आप उनको बताओ कि आप यहां गलत हो। तो ऐसे करके 10-10 करते हुए आई बिलीव यू विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर BARAC विद इन 2 or 3 months इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CRPC और IPC। और हालांकि अब तो न्यू लॉज आर देयर, भारतीय न्याय संहिता, राइट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आई बिलीव आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको, या कभी कभार देख के डर लगता होगा कि यार अभी तो हमने IPC पढ़ा है, अभी तो हमने एविडेंस पढ़ा है, अभी तो CRPC पढ़ा है, अब ये नई चीज़ क्या आ गई, इसको कैसे पढ़ूँ, राइट। तो what I have done in my classes that we have started doing the comparative study, क्योंकि अब एविडेंस का कोई महत्व नहीं है। हालांकि अब जो होएगा भारतीय न्याय संहिता ही चलेगा आफ्टर द जुलाई, राइट, बट वी हैव टू नो दैट अर्लियर व्हाट वाज देयर और अभी क्या है। तो फैक्चुअल हमें यहाँ से ही करना पड़ेगा, हमें सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, सेक्शंस के वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। तो ये होती है फैक्चुअल नॉलेज, तो ये कोई भी कर सकता है। अब सेकंड है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक्टस रियस और मेंस रिया हमें प्रूव करना पड़ता है, राइट। सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया, मेनी ऑफ यू आर सेइंग सर मेंस रिया तो वो स्टेटमेंट है दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड, राइट, जो कि गलत है, गिल्टी है, तो वो हमारा मेंस रिया हो सकता है। एंड इफ इट इज कपल्ड विद द एक्ट तो फिर वो एक्टस रियस हो जाएगा। क्या ये सही है? What do you mean by actus reus? क्योंकि हमें मेंस में लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव है, we have to have an edge above others. What other students are writing, let me tell you, students say sir actus reus is any act which is prohibited by law, कि कोई सा भी ऐसा एक्ट जो लॉ प्रोहिबिट करता है वो हमारा एक्टस रियस है, राइट। शायद आप भी यही बोलेंगे, इज इट राइट, एनी एक्ट which is prohibited by law, tell me. So I'll tell you, look, it is not the act which is prohibited, rather it is the consequence of a human conduct which is forbidden. For instance, if I am having a pen, right, and if I throw it over here, अगर मैं एक पेन को यहाँ फेंकूं या चाकू फेंकूं तो क्या होगा यहाँ पर? कुछ भी नहीं, राइट। Throwing is my act, but if the same knife I throw it at you, now what will happen? आपको चोट लग जाएगा। तो चोट क्या है? इंजरी है। इंजरी क्या है? कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस किस चीज का? मेरे एक्ट का, राइट। सो इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, दैट इज द एक्टस रियस। सो दिस इज हाउ यू विल हैव अ डिफरेंस, because many of the students will be writing the any act which is prohibited by law, that is actus reus, but that is wrong. मैंने गोली चलाई, नहीं लगी तो अटेम्प्ट हो गया, लग के मर गया तो डेथ हो गई। तो डेथ क्या है? कॉन्सिक्वेंस है ना, टेल मी, राइट। सो ये मेरे एक्ट ही फॉरबिडन नहीं है, एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो फॉरबिडन होना चाहिए। कभी कभार हमारे पास हमारा मेंस रिया नहीं रिक्वायरमेंट होता, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस।
राइट क्योंकि अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्यों है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है जहां पे मेंसरिया प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है. You need not require to prove the mens rea that I do not know whether that girl is less than 18. I believe that she is above than 18. वो बोल सकता है एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन प्रूव कि यार ये तो मेरे को 18 साल से बड़ी लग रही है इसलिए मैं इसको रेस्टोरेंट लेके चला गया. बट यहाँ पे मेंसरिया नहीं है. क्यों मेंसरिया नहीं? क्योंकि अगर आप मेंसरिया इसमें इम्प्यूट करोगे तो क्या होगा, हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा. हमारा पर्पस क्या है? टू सेफगार्ड द चाइल्ड. हमारा ये पर्पस है, इसलिए हमने इसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस बनाया है. अदरवाइज इसमें अगर हम नॉलेज डालते या इंटेंशन डालते तो फिर वो नॉलेज प्रूव कर देता कि जैसा मेरे तो नॉलेज ही नहीं थी, मेरे को लगा ये बड़ी है, तो वहाँ पे तो वो बड़ी हो जाता, निकल जाता. राइट ओके. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात होती है. तो हमें एक तो फैक्चुअल नॉलेज भी देखना है और एक कॉन्सेप्ट्स देखना है. कॉन्सेप्ट्स हमारे तब आएंगे जब हम मेंस में लिखेंगे, क्योंकि मेंस अगर मैं हरियाणा की बात करूं या दिल्ली की बात करूं ऑलमोस्ट सेम लेवल है. राइट. सो जो वो गॉन दोज डेज जो पहले इजी क्वेश्चंस आते थे, नाउ यू विल बी हैविंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. जैसे कि एक सिचुएशन मैं आपको देता हूं. मेरे एक स्टूडेंट से हरियाणा इंटरव्यू में पिछली बार पूछा गया था. अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट क्लियर बट शी गॉट द रैंक एट बिहार. शी वॉज फ्रॉम बिहार, तो शी सिक्योर्ड 5th रैंक. अच्छा, उनसे पूछा गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, and that is not a part of the syllabus of Haryana judiciary, but still they have asked the questions from industrial dispute act. just imagine. तो जो आप पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है वो आपसे पूछेंगे, जो आपने कॉलेज में पढ़ा है उससे भी पूछा जा सकता है. तो डू नॉट स्टिक टू योर सिलेबस ऑफ हरियाणा और वॉट एवर स्टेट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. राइट. यू शुड हैव अ ब्रॉड नॉलेज. जैसे एक क्वेश्चन उनसे पूछा, मैं आपसे भी पूछूंगा, प्लीज डू गिव मी द आंसर. कंसीडर एक पर्सन है, उसने वॉलेंटरली, माइंड इट, वॉलेंटरली उसने इंटॉक्सिकेट करा. ठीक है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट करा, पार्टी में गया और उधर पार्टी वार्टी करी. सुबह उसके पास एक दूसरे फ्रेंड का वॉलेट मिलता है उसकी पॉकेट में. ओके, उसकी पॉकेट में वॉलेट मिलता है. उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपने जो है थेफ्ट कर दिया. तो नाउ यू हैव टू टेल मी, दिस इज द कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव टू टेल मी कि क्या उसके ऊपर थेफ्ट की लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी. दिस इज हाउ यू विल बी हैविंग द क्वेश्चंस इन योर मेंस. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, क्या उसकी लाइबिलिटी बनेगी थेफ्ट की? टेल मी. मैं दोबारा बताता हूं, उसने इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरली करा, खुद से करा. ओके, द लर्नेड सर इज सेइंग दैट बनेगी लाइबिलिटी. नहीं बनेगी लाइबिलिटी. वॉलेंटरली है, पार्टी में भी उसने वॉलेंटरी करा और इतना लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन है. ओके, सो लर्नेड सर इज सेइंग कि जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा. नहीं, मैं अभी इनको गलत प्रूफ करूंगा. तो देखो मैं क्या कह रहा था, दैट लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी. ठीक है, तो आप सर क्यों नहीं बनेगी, आप मेरे को इसका रीजन दीजिए. वॉलेंटरली है. अच्छा, तो लर्नेड सर से कि आपको अपने सामान की खुद जिम्मेदारी करनी है, कोई और लेके गया तो फिर आपके ऊपर थेफ्ट की लाइबिलिटी बनेगी. राइट सर. देखो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं. पहले हमें समझना है वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन होता क्या है. अगर कोई वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन करता है तो उसको जनरल एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. सेक्शन 85 ये कहता है कि अगर उसको जबरदस्ती कोई पिला दे और तब वो एक्ट करे तब उसको ऑफेंस नहीं होगा, तब उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा. बट हमारे केस में क्या है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड है. बट हमें ये भी समझना है कि क्या थेफ्ट का मेंसरिया और एक्टसरिया प्रूव हुआ है या नहीं. और अगर हम थेफ्ट की बात करें, सेक्शन 378 बात करता है और अब तो नया लॉ में 301 है. राइट. तो 378 क्या कहता है कि इंटेंशनली, डिसऑनेस्ट इंटेंशनली आपने मूव करा प्रॉपर्टी. तो मूव तो कर दिया बट आप इंटेंशन प्रूव नहीं कर पाओगे.
क्योंकि इंटेंशन इज ऑलवेज नीड्स टू बी व्हाट प्रूव, इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम। और ये कैसे है बताओ, आपने नो बोला था, बता दो कैसे। वॉलंटियर में वो इंटॉक्सिकेशन के लिए था, उसके बाद वो हेल्थ के लिए जो इंटेंशन है वो वहां पे उन दोनों को मिक्स ना हो, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। ओके चलो मैं इसका भी जवाब देता हूं। देखो ये क्वेश्चन ये है कि आपने वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट करा और पार्टी में भी वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट करा और आपका लेवल इतना ज्यादा है दैट यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, you do not know, and in the next morning you have the wallet of some other person। ठीक है, अब देखो यहाँ हुआ क्या कि यहाँ अगर मैं हूँगा उसका डिफेंस लॉयर हूँगा तो आई वुड से कि जज साहब हमें एक्टस रियस और मेंस रिया प्रूव करना पड़ेगा तभी हम इसकी लाइबिलिटी बनाएंगे, राइट। बट यहाँ एक्टस रियस तो प्रूव हो गया कि आपने मूव करा, मेंस रिया में क्या है, इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन 86 आता है, सेक्शन 86 कहता है कि अगर आपने वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन करा है तो फिर नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम, इंटेंशन कैन नेवर बी प्रिज्यूम। सो ओवर हेयर द मेंस रिया इज द इंटेंशन एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86 द इंटेंशन कैन नेवर बी प्रिज्यूम। सो ओवर हेयर देयर विल बी नो लाइबिलिटी। तो यहाँ लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इंटेंशन। बट अभी आपने देखा होगा पोर्शे कार का एक्सीडेंट, राइट, तो उसमें मैंने भी एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, महिंद्रा लॉ अकेडमी में आप देखोगे, उसमें भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ये क्या है कि अगर कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तेज चला रहा है, तो मर्डर के केस में नॉलेज इज वन ऑफ द मेंसरिया, और सेक्शन 86 के अकॉर्डिंगली हम मेंसरिया प्रिज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं 150 की स्पीड में चला रहा हूँ और मुझे मालूम है मैंने इंटॉक्सिकेट कर रखा है, तो मुझे मालूम है कोई ना कोई मरेगा, तो वहां पे मर्डर कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड। बट यहाँ प्रॉब्लम आती है पुलिस के टाइम पे। पुलिस क्या करती है? मैनिपुलेट करती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है? मैनिपुलेट करती है। बट जज इज जज, जज को लगता है कि नहीं मैनिपुलेशन हुआ है, वो दोबारा बोल देगा नहीं, दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, राइट। सो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, दैट इज फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल। सो फैक्चुअल तो कोई भी कर लेगा, कंसेप्चुअल के लिए यू हैव टू हैव दैट ब्रॉड, आपको माइंडसेट चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन हमें देखना है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या क्या हो सकता है। सो दैट इज व्हाट वी डू इन आवर क्लास, राइट, फैक्चुअल एंड योर कंसेप्चुअल। प्लस एक और चीज है क्लैरिटी, राइट। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हिसार में, एंड दे हैव आस्क्ड मी, दे हैव रिक्वेस्टेड मी दैट यू सर प्लीज कम टू हिसार एंड start your academy over here. So I was talking to one of my student, Mr. Gaurav over here. His name is also Gaurav. So he said कि सर आप आए देखो इधर, तो मैंने कहा ठीक है। तो I met with Dr. नागपाल सर, and उनके साथ I will be setting up my academy, Mahindra Law Academy at Hisar with collaboration of Dr. नागपाल सर। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और जैसे मैंने अभी आपसे इंटरेक्शन करा ऐसे ही मैं क्लास में भी इंटरेक्शन करता हूँ। इनफैक्ट माय क्लास इज़ वेरी इंटरैक्टिव, राइट। जैसे हालांकि आप तो इंटरेक्ट कम कर रहे हो, बट माय क्लास इज़ वेरी इंटरैक्टिव बिकॉज आई बिलीव कि अगर जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, और सिर्फ वो वन साइड ही रहेगा। तो जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, राइट। सो जुडिशरी क्लियर करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट वेरी इजी। यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रॉपर अप्रोच। आपको एसेंस पता होना चाहिए कि अगर मुझे हरियाणा देना है तो उसका तासिर क्या है। तासिर आप समझते हो, एसेंस समझते हो, क्योंकि अब इसी साल इन्होंने, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, अब OMR शीट में 5 ऑप्शंस हैं, पहले 4 थे, ठीक है। पहले क्या था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आप स्किप कर सकते हो, बट नाउ व्हाट दे हैव स्टार्टेड कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता यू हैव टू फिल द ई, ऑप्शन ई फिल करना होगा। तो मतलब ये आपकी अलग से ऑब्लिगेशन है। तो आपको टाइम भी देखना है, आपको एक्यूरेसी भी देखनी है, और आपको सारी चीज़ें खुद से देखना है। टाइम बहुत कम है, 125 क्वेश्चन इज देयर एंड कट ऑफ ज़्यादा जाती है। और मेजरली इंडिया में दिल्ली और हरियाणा ही लोग ऑप्ट करते हैं। क्यों? कंसीडरिंग इट टू बी स्मॉल स्टेट। प्लीज सर। According to you, so that person is liable or not for the theft? सर दैट पर्सन इज नॉट लायबल। Why?
Sir, Section 85 and 86 provides that the knowledge or either the intention doesn't matter if the person voluntarily intoxicated himself. And if you say that the definition is giving the particular mens rea, the particular action, then also that means going behind the scope of the question that is asking. अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हम उसकी विवरण में उसका लिस्ट में उसका फैक्ट दे देते हैं क्वेश्चन में कि उसने इंटॉक्सिकेटेड किया, पार्किंग लिया, अगले दिन थेफ्ट किया, एलिगेशन थेफ्ट कर. बट वी आर सेइंग दैट उसने रख लिया होगा, जानबूझ के आ गया होगा. I'll come to your point. Learned sir is saying कि सर यहाँ पे हम 85 और 86 तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरली है. दैट इज योर पॉइंट. ओके, देखो मैं थोड़ा और इससे पीछे जाऊँगा. सेक्शन 85 कहता है कि अगर आपने वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन करा है तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, राइट? आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपने ज़बरदस्ती करी है, ठीक है? और मान लो मैं, कंसिडरिंग मी, मैंने बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन कर लिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है, और मैंने किसी को समझते हुए कि ये रेड बुल इसने पी है, दैट रेड बुल विल गिव्स हिम द विंग्स, और उसको मैंने नीचे फेंक दिया छत से, कंसिडरिंग दैट ही विल हैव द विंग, बट दैट पर्सन डाइज, ठीक है. मैं ये बोलूँगा जज साहब, आप 85 का डिफेंस नहीं दे रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को डिफेंस नहीं चाहिए, बट आप मेरा नॉलेज या इंटेंशन तो प्रूफ करके दिखाओ. तो वहाँ डेडलॉक हो जाएगा ना. क्यों? क्योंकि मेरी लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट हैव दैट काइंड्स ऑफ मेंस रिया. तो सेक्शन 86 ओवर हेयर सेज दैट इन सच केस अगर इंटेंशन और नॉलेज दोनों मेंस रिया है तो उस केस में आपका नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम्ड बट इंटेंशन कैन नेवर बी प्रिज्यूम्ड. नॉलेज विल बी एज इफ यू हैड नो इंटॉक्सिकेशन, तो वो वाली आपकी नॉलेज होती. तो इस केस में सर नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम बट इंटेंशन कैन नेवर बी प्रिज्यूम. और हमारे जो थेफ्ट वाला केस था वहाँ नॉलेज मेंसरिया नहीं है, वहाँ मेंसरिया है इंटेंशन. सो देयरफॉर इंटेंशन हमारा मेंसरिया प्रूव हुआ नहीं तो हम उसको छोड़ना पड़ेगा. यस प्लीज. अगर थेफ्ट की बजाय ऐसा है मतलब ऑफेंस होता लायबिलिटी का होता है, इंटेंशन नहीं थी तो ये परिपूर्ण करेंगे. तो यस, माय लर्नेड फ्रेंड सेज कि सर अगर थेफ्ट की जगह कोई ऐसा ऑफेंस होता है जो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है तो वहाँ तो मेंसरिया प्रूव ही नहीं करना. तो वहाँ मेंसरिया प्रूव ही नहीं करना, वहाँ पे तो बस कि वो लड़की 16 साल से छोटी है तो मैं उसको ले गया, तो वो आपका जो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो गया, राइट? तो what my agenda over here is to tell you that I will be taking care of major subjects, right? And we will be setting up the academy over here. Yes, but it's okay, कोई बात नहीं. In case if you have any kind of doubts or any kind of queries, right, I will be here only. My name is Gaurav Mahindra. In case आपको अगर नंबर चाहिए तो फिर आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं. And thank you very much. Thank you so much. Thank you. इंदिरा जी, Yes, one more information I would like to share, that we will be inaugurating our institute on 16th of June, and we have Justice Rajesh Tandon sir on board. So he will also be coming, he will also be joining us. So that is on 16th June and it is on Sunday. So I would like all of you, please do come and interact with Lordship and with us. Thank you so much. Thank you, sir. प्लीज have a seat. थैंक यू महिंद्रा जी. अभी गौरव जी ने हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, मेंस रिया, एक्टर्स रियस, और इंटरेक्शन सेशन बड़ा अच्छा रहा. उन्होंने थोड़ी शिकायत की भी इंटरेक्शन थोड़ा सा कम रहा. मैं हमारे जो नए साथी हैं उनसे एक शेर के रूप में एक लाइन कहना चाहूँगा. परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, क्या ज़मीं पर बैठकर आसमान देखता है. तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने परों को खोलें. आपके लिए बड़ा विस्तार है, आप सभी इंटरेक्शन फुल है, नॉलेज फुल है, लेकिन जब तक अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे तो ज़माना आपकी उड़ान नहीं देख पाएगा. तो परों को खोलें. अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रधान श्री विनय कुमार बिश्नोई जी से, वे पोडियम पर आएं और एड्रेस करें.
Respected Shri Gaurav Mahendra ji, Director Mahindra Law Academy, Dr. Dinesh Nagpal ji, Respected Secretary Gaurav Beniwal ji, Respected Secretary Joint Secretary Praveen Nayan ji, and Respected Member. सबसे पहले तो मैं गौरव जी का और दिनेश जी का धन्यवाद करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी बार में पहुंचने पर। मेरी दिनेश जी से बात हो रही थी कि मैं कुछ ऐसा, हम एक सेमिनार चाह रहे थे कि जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तभी इन्होंने मुझे बताया कि वो जल्द ही कोई महिंद्रा लॉ अकेडमी से ही अपने इजहार में शुरू करने जा रहे हैं। हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गौरव जी का और दिनेश जी का। और अभी जो यंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा गौरव जी से, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है 1 से 1:30 हमारा लंच होता है, उसके बाद हमें सभी कोर्स में जाना है। तो यंग स्टूडेंट्स अभी गौरव जी हमारे पास 15-20 मिनट अभी तक हैं, चाहे हम उनको दे रहे हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए आप बाहर लाइब्रेरी में आ सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट थी दिनेश जी से, तो उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि मैं तो जो इजहार बार के मेंबर्स हैं उनके लिए एक कंसेशन जो है स्पेशल हमें मिलना चाहिए। तो उन्होंने कंसेशन तो नहीं बताया। सर कितना कंसेशन अलाउ करें? सर नहीं, थोड़ा सा प्लीज़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इजहार बार के मेंबर्स हैं 25% आपको कंसेशन मिलेगा इस एकेडमी में। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिनेश जी का, गौरव जी का, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अब इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं सभी उपस्थित सदस्यों का, हमारे आए हुए अतिथिगणों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।